Hello everyone. Today we are going to talk about syntax in Java programming, and then we'll talk about the keywords in Java programming. Okay, so this is going to be very simple. Don't worry. So let's understand the syntax part. Okay, syntax क्या होता है? Syntax is simple, like a way of writing, way of or the rules. Just not the way. There are always some rules, right? For any programming language. Okay? Programming language. This is directly related to what you are writing. Okay? It's not about what logic you are putting. It's not about what logic you are applying in your program. It's related to how you are writing it. Okay? And is there any mistake about that? Okay. So फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर. ठीक है. So yesterday we had this thing, right? Yes. Basic Java. Yeah, this one. We made a project. Basic uh, Java batch, right? Inside that we have created uh, practice. Correct. This one. First program. This is our first program, right? तो इसमें सिंटेक्स वाली क्या बात है ना? So we are talking about syntax part. So syntax is related to can I write it like small s here instead of capital S? No. So if I hover over it, it is showing me that system cannot be resolved. Means small s, but if I make it capital S, it will work. Okay. Can I delete this semicolon from here at the end? No, it will show me the error. Okay. And if you want to see the error, it will show you. Hover करो यहाँ पर दिख जाएगा. Syntax error, insert semicolon to complete block statement, right? So these are basic rules for the programs that for each statement, at the end, if it is a complete statement, semicolon will come at the end. Okay. जैसे कि ये कमेंट है तो कमेंट ऐसा ही होगा. इट्स अ सिंगल लाइन कमेंट. अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको करना पड़ेगा स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश एट द एंड. सो फॉर एग्जांपल हियर व्हाटएवर आई कैन राइट एनीथिंग. आई एम लर्निंग अबाउट syntax. This is not going to be executed. This is just for us. This is just for the programmer who is writing this program. This is commented. So at the time of execution, when you are executing it, तो इसने कमेंट नहीं एग्जीक्यूट किया है. इसने तो जो हमने कमांड दिया है बस वही एग्जीक्यूट किया है. ओके. It is executing only just these two lines. Fine. For the reference, I'm going to here, which is talking about the Java syntax here. So क्या होता है syntax? ये यहाँ पर बताया इन्होंने. So every line of code that runs in Java must be inside the class, right? Every line of code that runs in Java must be inside the class. आप देखो यहाँ जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसमें पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम नेम ऑफ द क्लास है, फिर करली ब्रैकेट है. तो जो भी कोड होगा विच विल इट विल बी विद इन दिस करली ब्रैकेट ओनली. ओके. जितनी भी चीजें आप लिखने वाले हो ये क्लास के स्कोप में ही आएंगी. इसके बाहर अगर मैं कोई कमांड लिखता हूँ, लेट्स से इफ आई राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है, बट लेट्स डू इट हियर. देखो एरर है. एंड व्हाट इज द एरर? इफ आई hover over it,
it is showing a multiple marker at this point, syntax insert. So it's what it is saying कि इसके बाद एक curly bracket लगाओ करके, right, which is not correct, right, but it is suggesting something, क्योंकि उसको लग रहा है ये क्लास के बाहर कैसे हो सकती है लाइन, right? So I'm deleting it. So you cannot write anything, outside the class, right? In other programming language, maybe in JavaScript, maybe in Python, that is allowed. Okay. But in Java programming, it is very strict that you will be putting all your code between this opening and closing curly bracket. Okay. Anything else? Java is case sensitive. My class and my class has different meaning. So what it is saying, you have created this, right? You cannot create again with the same name of the class, right? Or if you will make it like small p in some other class name, so it will be a different one. Okay. So Java is case sensitive. Case sensitive means let's understand. Let's understand what is case sensitive. So जावा में हम इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने लिखा इंटीजर x is equals to 20, capital X is equals to 20, and then I'm writing integer small x is equals to 10. Okay, so both are different thing. ये वाला जो डिक्लेरेशन हुआ है वो कैपिटल एक्स के लिए हुआ है 16th लाइन में, एंड ये जो डिक्लेयर हुआ है वो स्मॉल एक्स के लिए हुआ है. तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं. ओके, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं. मैं नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख सकता हूँ इंटीजर स्मॉल d इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स. और अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. लेट्स से विल प्रिंट what is the value of d now, right? So that will become 30, obviously 10 plus 20. Okay, see here, it is showing me 30. इसका ये मतलब है कि जावा केस सेंसिटिव है. कैपिटल एक्स इज डिफरेंट देन स्मॉल एक्स. ओके, सो ये सब सिंटेक्स रूल्स हैं. लेकिन क्या मैं वापस से इंटीजर एक्स लिख सकता हूं यहाँ पर? इंटीजर कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 45. that will give me error. It is saying me that duplicate local variable. It's saying me duplicate local variable, okay, because you have already declared it. It's saying कि अगली जो लाइन लिख रहे हो आप वो डुप्लीकेट है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल नेम, राइट? वैल्यू से उसको कोई लेना देना नहीं है. वैल्यू यू कैन पुट एनीथिंग. फाइन. व्हाट एल्स? ओके, बाय डिफॉल्ट वैसे जब आप भी कोई भी क्लास बनाते हो तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ना, ये देखिए एक्सटेंशन इसका रहेगा डॉट जावा. ओके, इट विल हैव एक्सटेंशन जावा. हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, राइट? जैसे कि आप नोट पैड में जब बनाते हैं तो वो डॉट टी से सेव होता है. वर्ड में अगर आप काम करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सो एक्सटेंशन डॉक रहता है, डॉट डॉक या डॉट डॉक एक्स रहता है, या डॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे तो डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स होता है. वैसे ही जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा. ओके, व्हाट एल्स? मेन मेथड. सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस. मेन मेथड का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. पब्लिक स्टैटिक void main, inside that string. ये हम समझेंगे कि ऐसा क्यों, what is the reason behind this. Not today. First we will get familiar with syntax, rules, keywords, then we will talk about what is public, what is static, what is void and main. Let's create a new program. Let's create a new program. So same thing, if you have not gone through yesterday's video, we'll share it, but let's understand it as of now. We are creating a new program here inside the same package. If I do right click and say new class, and
we'll talk about, let's say, syntax demo. That's it. I'm giving a name. There should be some name for it, all of your program. It's like this. Finish. So if you see here, basic structure is ये बोल रहा है कि आप इस पैकेज के अंदर हो, ठीक है? Means this class comes under this package. It's like this package practice. Okay, here it is practice. Then public class syntax demo class name. Now from line number 4th you can write anything. Okay, but जावा का रूल ये है कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से. ओके, सो यू हैव टू राइट पब्लिक static void main, and then here you have to write string, anything you can write. I am writing ty. Okay, any variable name you can give. So Java is designed in such a way that it always search for where is the main function, okay, where is the main block, and it will start executing from here. ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट println, वैसे तो ये अलाउ नहीं कर रहा है, बट लेट्स डू समथिंग. इंटीजर r is equals to 56, लेट्स से यहाँ लिख दिया हमने, या कोई और फंक्शन बनाते हैं. आप दूसरे फंक्शंस भी बना सकते हो. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड. फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, वो सब हम बाद में देखेंगे. अभी मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ बस. ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सपोज मैंने इसका एक नाम दिया चेक, एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम कोई कोड लिखते हैं. पहले मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट println. लेट्स से आई एम राइटिंग हियर I am inside main function. ओके, वैसे ही हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक कोड लिख लेते हैं I am inside check function. ठीक है, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है. आपने देखा यहाँ से प्रिंट हो रहा है I am inside main function. इट इज प्रिंटिंग मी I am inside main function. इसका कुछ हुआ ही नहीं काम. ठीक है, रीजन, द रीजन इज इट एग्जीक्यूट्स द मेन फंक्शन, राइट. उसके बाद अगर आपको कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो उसको कॉल करना पड़ता है. ठीक है, जैसे चेक फंक्शन है तो उसको कॉल करना पड़ेगा. हम ये कॉलिंग वगैरह बाद में देखेंगे. मुझे बस ये बताना था आपको कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो सिर्फ मेन के पार्ट का हो रहा है इसमें, बाकी कुछ भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही है. ओके, फाइन. Going back to this theoretical thing, read it. I'll share all this. Let me share right now. In chat window also, I'll share. And here also, so that, as a reference, you can read it later on. Fine. What else? ये सब रूल समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. क्या होता है, कई बार प्रोग्राम्स लोग सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन बेसिक रूल्स ही नहीं पता है तो फिर बाद में एरर आती है उनको. ओके, व्हाट इज करली ब्रैकेट? ये बार बार हम करली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं यहाँ पर? तो दैट डिफाइंस द स्कोप. स्कोप का मतलब है कि मेन फंक्शन का स्कोप इतना ही. लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th लाइन एंडिंग एट 11th लाइन. इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा. वैसे चेक फंक्शन, अगर चेक फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो जो भी आप इनसाइड दिस करली ब्रैकेट लिख रहे हो उतना ही काम करेगा. ओके, इट विल नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. तो फिर फंक्शन, तो देयर आर रूल्स देन. जब भी कोई फंक्शन होगा तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है. ओके, क्लास स्टार्ट हो रही है तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है. सो दीज आर द रूल्स. ओके, फिर ये भी रूल है कि जब आपने system डॉट आउट डॉट println लिखा है तो यहाँ ब्रैकेट
ऐसा नहीं है कि मैं बिना ब्रैकेट के यहाँ पर ऐसा लिख दो, राइट? ठीक है, क्योंकि प्रिंट एलन भी एक फंक्शन है जिसमें हमको कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं, so it requires this circular bracket. Okay, this will be called opening bracket, this will be called closing bracket. Fine. Okay, any other rule? That's it. That's it. So this is about syntax part. हम कुछ चीजें और सीखते हैं अभी, ठीक है? So let's understand कि आप मेन फंक्शन के अंदर, लेट्स से आई डिक्लेयर दिस इनसाइड दिस int r is equals to 56। तो बैकग्राउंड में क्या होता है पहले तो समझते हैं हम कि जावा प्रोग्रामिंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जब मैंने लिखा इंटीजर r इज इक्वल्स टू 56, राइट, इसका क्या मतलब है? जावा जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। वो क्या बोलता है कि आप कभी भी कोई वेरिएबल ले रहे हो, राइट, तो फिर बताओ कि उसका टाइप क्या है। ओके, सो आई कैन नॉट से आर इज इक्वल टू 56, ऐसा मैं नहीं लिख सकता जावा में, ठीक है? एक वेरिएबल अगर मुझे लेना है आर, राइट, एंड आई वांट टू असाइन इट लाइक 56, वैल्यू 56, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। मुझे बताना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। रीजन क्या है क्यों उसको डेटा टाइप चाहिए? क्योंकि जावा जो है वो प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है। आप जब इसको कंपाइल करते हैं तो ये पहले ही से समझ जाता है कि इस प्रोग्राम को कितना मेमोरी लगेगा। ठीक? जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे या कंपाइल करेंगे तो वो उतनी मेमोरी, एटलीस्ट इट ट्राइज टू रिजर्व दोस मेमोरी। ओके, सो जावा में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर जस्ट वन, वन ऑफ द डेटा टाइप। ओके, तो और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कैर टी इज इक्वल्स टू, लेट्स से एनीथिंग यू कैन पुट एल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। इंटीजर का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप जैसे मैथ्स में होता है ना, हम बोलते हैं लेट w इज इक्वल्स टू 30, या लेट w एज सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे ही हम जावा प्रोग्रामिंग में बोल सकते हैं इंटीजर r इज इक्वल्स टू सम न्यूमेरिकल वैल्यू, और एनी इट्स नॉट जस्ट r, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। इंटीजर p इज इक्वल्स टू 56 भी हो सकता है, राइट? कैरेक्टर t इज इक्वल्स टू, कैर में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर डाल सकते हो आप, ठीक है? कैर का मतलब एक सिंगल कैरेक्टर यू वांट टू एलोकेट टू एनी वेरिएबल। फिर से इसको हम डिकोड करते हो कि होता क्या है बैकग्राउंड में when you are declaring integer p is equals to 56, and it's very important. Generally people think that, oh, it's very simple, इसके बारे में सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन ये सब छोटी चीजें ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये लाइन का मतलब क्या है, हमें पता रहना चाहिए हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, राइट? So when we are saying integer p is equals to 56, in the background, पहले समझते हैं इसको, पहले डिकोड करते हैं इंट क्या है इसमें। इसमें चार चीजें हमने लिखी है। इंट, फिर हमने लिखा है p, फिर हमने लिखा है इक्वल टू साइन, फिर हमने लिखा है 56, और फिर हमने सेमीकोलन भी लिखा है। सब चीजें समझना पड़ेगा हम। ओके, so what is int? Int is indicating data type. Okay. P क्या है? P है वेरिएबल और आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वी आर
आइडेंटिफाइंग समथिंग, ओके, थ्रू पी, ओके, या एक वेरिएबल का नाम है। इक्वल टू साइन क्या है? इक्वल टू साइन सबको पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। 56 क्या है? 56 वैल्यू है, वैल्यू, या इसको लिटरल भी बोल सकते हैं, या कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू है 56, 56, राइट, फाइन। इक्वल टू साइन क्या है? इक्वल टू साइन इज एंड ऑफ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, फाइन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, करेक्ट। इंटीजर p is equals to 56. Now, why I'm writing everything like this? Let's, because it you have to decode it properly. तो कोई भी वेरिएबल जावा में अगर आप उसको असाइन कर रहे हो कुछ वैल्यू, तो असाइनमेंट के पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन जरूरी है, ये भी एक रूल है। मैं ऐसा रैंडमली कभी भी q इज इक्वल्स टू 99 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि q क्या है, ओके। नाउ this is data type, that's fine. We will see other kind of data type also. What is p then? P is variable or identifier. अब identifier के भी रूल है, आप मतलब कुछ भी रेंडमली नहीं लिख सकते हो। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, चलो यहाँ जाते हैं प्रोग्राम में, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसा लिखूं इंटीजर एंड दिस इज इक्वल्स, लेट्स से इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। आई कैन नॉट डू दिस थिंग, मतलब ये मुझे अगर कोई वेरिएबल का नाम देना है तो उसके भी रूल्स हैं कि क्या दे सकते हो। वो अल्फा न्यूमेरिक होंगे तो बेटर है, अल्फाबेटिक होंगे तो अच्छी बात है, राइट। सो इट्स फाइन, बट ऐसा नहीं स्पेशल कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 99 ऐसा नहीं दे सकता हूँ मैं, ओके। मुझे इंटीजर सम मीनिंगफुल नेम दोगे तो बेटर है, जैसे कि इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 99, राइट, इट इज मेकिंग सेंस। इंटीजर एज इक्वल टू 99, या मैं लिखता हूँ कभी इंटीजर roll number, roll number is equals to 78. So it's making sense, right? And वो प्रोग्राम में आप जब यूज करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने क्या किस लिए डिक्लेयर किया था ये वेरिएबल, बिकॉज आई वांटेड टू save age or I want to save roll number. So always give some meaningful name to your variables, okay? जैसे कि p भी हमने लिख दिया, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, अभी तो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए हमने पी लिख लिया है, राइट, कि हम कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, तो इट्स बेटर। आप एज 3 ऐसा लिख सकते हो, रोल नंबर 66, रोल नंबर 89, या अंडरस्कोर लगा सकते हो, राइट, रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, आप ऐसा लिख सकते हो, इट्स फाइन। इतना बड़ा भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, ओके। अंडरस्कोर इज अलाउड। सो देयर आर रूल्स अबाउट वेरिएबल, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन आप स्पेशल कैरेक्टर से मत स्टार्ट कीजिए इसको, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डॉलर डॉलर स्टार, ऐसा ऐसा मत दीजिए। ये ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉसिबल होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी खुद की भी एक मीनिंग होती है कुछ, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड, फाइन। सो आई वाज गोइंग बैक टू हियर, इक्वल टू साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना। वेरी सिंपल वर्ड, सिंपल स्टेटमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है इक्वल टू साइन का राइट हैंड साइड वट एवर यूर राइटिंग, इट विल बी असाइंड टू लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने ये बोल दिया, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हम तो बचपन से ये सब चीजें सुन ही रहे हैं, राइट, तो फिर ये इसमें बोलने वाली क्या बात है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बड़े एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है जावा प्रोग्राम में, राइट, दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी हो सकता है ना, p is equal, p is equals to 9 multiplied by, let's say, age 3 जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्लस
44 minus in the bracket, let's say 10 divided by 2. ये एक बड़ा एक्सप्रेशन हो सकता है, right? So this time this equal to is very important. The thing is राइट हैंड साइड विल बी रिजॉल्व फर्स्ट, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो पी को असाइन होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, या इधर कुछ भी हो जाए ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना है कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या हो। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या रिजॉल्व होगा, इसका जो भी आउटपुट होगा वो P में असाइन होगा। That is why it is called assignment operator. 56 is simply a particular value you can put, लेकिन अब रूल्स भी समझना है। जब आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है P को, तो क्या मैं इंटीजर P is equals to 56.99 ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, एरर। It's showing me error that type mismatch cannot convert from double to int. So it is saying कि आपने जो, because see, right hand side will be resolved first and then it will be assigned to left hand side, correct? तो पहले ये रिजॉल्व करता है कि 56.99 क्या है। 56.99 इंटीजर नहीं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीजर वैल्यूज विदाउट डेसिमल होता है, राइट? डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। इंटीजर एक होल नंबर हो, होल नंबर का मतलब ये है कि उसमें डेसिमल नहीं हो सकते। आई एम राइटिंग इट हियर, इंटीजर should be without decimal. Okay. So when you're declaring int, उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? उसकी वैल्यूज हो सकती हैं -67 चलेगा, ये भी चलेगा, 44 ये भी चलेगा, 450, 4580 ये भी चलेगा। ठीक है, बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीजर y इज इक्वल्स टू c? नहीं। आप लिख सकते हो सकता है प्रोग्राम चल भी जाए, लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, आपको हमेशा नंबर्स ही एलोकेट करने हैं इफ यू आर डिक्लेयरिंग इट इंटीजर। कैन आई राइट लाइक इंटीजर y इज इक्वल्स टू नितेश? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, so rules, that is why we are learning this. What is the syntax and other rules? Fine, so this is not allowed. Fine, going back to that. Then equal, then semicolon. Semicolon is end of statement. So when you are writing semicolon, that means this statement is complete. Let's do the next statement. So for example, अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर p इज इक्वल्स टू 56 लिखा है और मैंने सेमीकोलन दे दिया, तो मैं इसके just after this I can put another statement. That's perfectly fine. Though it doesn't look good, right? हम जब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी है यहाँ पर, बट सेमीकोलन लिख लिया है तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। यू कैन राइट अनदर स्टेटमेंट आफ्टर दिस। ओके, इट्स लाइक दिस। इनफैक्ट यहाँ भी मैंने सेमीकोलन लिख लिया ना, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यहाँ लिख सकता हूँ। इट विल नॉट change anything on the execution side. So if I'll still run it, मुझे कोई error नहीं आएगा। ठीक है, it's still printing I am inside main function. So okay, so semicolon means end of statement, right? But it's better to keep it in the next line here for better clarity and better look of your program.